स्वागत है आपका आज वीडियो स्वागत में। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है रीजंस बिहाइंड पाकिस्तान इकोनॉमिक डाउनफॉल, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एक्सप्लेन्स। तो चलिए जानते हैं वो रीजन, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Your friends are scrolling through short content, but you, my friend, you're here to learn. Welcome to TRS Clips. We're going to be talking about our neighbors because there's actually a lot of Pakistani viewers of the show as well. I don't know why they watch an Indian geopolitics podcast, but सीखने को बहुत from कुछ your मिलता eyes, because you're technically not just a geopolitical observer, but it's your profession. Like, you know aspects of geopolitics that the common man cannot possibly know. Well, we think so, but you know, I don't know. I think there's access to some heavy levels of big data. But anyway, I'd like to ask you if you guys and the think tank around you guys was able to predict what's going to happen in Pakistan today. I don't know what the equivalent of Pakistani IS is called. I think it's called PAS. There was a civil servant's house that got burnt to the ground, and people were stealing food from that person's house. And this is becoming meme material in India. With someone stealing chicken from the house, someone stealing Ninth May की बात dessert. हो रही है। That's the condition of that nation in some parts. Were you guys able to predict that this is going to happen to Pakistan going forward, like this kind of economic turmoil? well, I think the signs were there. You know, in terms of political instability, but also in terms of an economic crisis in the making. I mean, we've been seeing a negotiation with the IMF over a period of time, the last few years, which has been, you know, partly successful, but clearly not fully successful. There has been talk about a bailout also, not just by the IMF, but by countries that are sympathetic to Pakistan. And in a certain sense, I think a combination of factors, and a combination of the factors I just mentioned, the global factors also, have impacted adversely on Pakistan. It's impacted on our own entire neighborhood. If you see Sri Lanka, if you see many of our other Bangladesh. neighbors also have been facing the brunt of situations which are beyond their control. You know, the globe today is interlinked and interconnected in a manner that you may be thousands of miles away from an epicenter of conflict or disease, but you are still adversely affected equally as people who are there, right there. So I think Pakistan is no different. They've faced the brunt of COVID. They've faced the brunt of higher prices of the import of fuel, fertilizers, food. At the same time, I think, you know, management, good sound policies are very important. I think we are very lucky that we've emerged from COVID as a resilient economy. The government has, I think, managed COVID very well. We've administered over 2 billion vaccines to our citizens through the CoWIN digital platform. We have provided very strong financial and food support to 70% of our population. Government, I think, has spent 1.7 lakh crore rupees, about $29 billion, through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. And as a result of that, I think every single citizen who is in need of that support during the COVID period has got that support till the end of 2021. Sound policies make a difference. Sound governance matters. The right decision, the right time makes a lot of difference. I mean, I've been very fortunate to work, you know, with the Prime Minister on many crisis situations. And I think as a country, we really need to be very cognizant of the fact that you are in very, very good hands and safe hands, in a sound pair of hands guiding the system. That extends obviously to the larger leadership and people like External Affairs Minister Dr. Jaishankar. Everybody who's in that decision-making process are people who understand there's a responsibility and take decisions that is in the best interest of the country. This is my personal view. No, sure. You know, abroad we are portrayed as a fascist country. Portrayed. Like, that's the truth. And again, I'm saying that from youth perspective. I'm trying to correct that through the podcast, because this podcast is watched by white people as well, who's sitting in America, sitting in UK. Again, when I was in the US, I met a record number of senators and congressmen, about 450 of them, for the simple reason that I wanted to reach out to each of them and say, look, this is the reality. And to many of them, I said, go and visit India.
You know, go and see for yourself. That's the point you raised. You know, you're sitting here and you're being subject to a certain point of view, which is subjective. I mean, you go and take your own, get your own first-hand opinion. Meet our leadership, meet people on the streets, go and see for yourself what's happening. If you think that the development in our country is in some senses discriminative, if you think that there is a certain a lack of media freedom, then go and have a look for yourself and see. And I think many of them actually did come down and their views certainly became more balanced. So perceptions are important, and how you shape those perceptions are very important. And I think some of the as I said, coverage and some of the reporting would give you give the common man a very wrong sense of view, and I think it's a constant ongoing struggle to maintain a sort of a balanced position. Yeah. So these are playlists made especially for you. We've tailor-made learning experiences for you. TRS Clips. पाकिस्तान के एक डाउनफॉल की बात की जाए तो उसमें हमारे लीडर्स का जो है ना एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ चीज़ों का रिफॉर्म ना करना, हमेशा जो है फ़ौरन जो है लोन्स पर जो है आप डिपेंड रहना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि भाई लोन पे जो है इकॉनमीज आप वक्ती तौर पे तो चला सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट की बात करें तो उसके लिए भाई आपको सॉल्यूशंस जो है वो देखने पड़ते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ना कि लोन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि किसी भी गवर्नमेंट को एक कंप्लीट टेन्योर नहीं किया टेन्योर उसका पूरा नहीं होता दिया जाता, और वो एज अ पपेट ही आपके सामने आती है। काफ़ी टाइम तक तो ये लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब लोगों को पता भी चलना शुरू हो गया, उसके बावजूद आपको एक सोसाइटी में केओस ज़रूर नज़र आता है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व की जाए वो ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आते। दूसरी साइड पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स लेकर आने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम जो लीडर चूज़ कर रहे हैं क्या वाकई में वो इस काबिल है या नहीं है कि वो हमारी कंट्री के लिए बेहतर हो। जैसे कि सर ने बीच में बात भी बोली, एक तो इंस्टेबिलिटी की उन्होंने पॉलिटिकल बात की, फिर उन्होंने साउंड पॉलिसीज़ के बारे में बोला, तो वाकई में पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमेशा आप आने वाले टाइम के बारे में कितना सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपको हर डिपार्टमेंट में ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे जो कि प्रॉपर काम कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी आपको इस तरह की लीडरशिप और ऐसे पॉलिटिशियंस नज़र आएंगे कि जिनको सिर्फ इस वजह से मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं कि जो उनके कैलिबर को देखकर नहीं, या शायद उनको बिल्कुल उनके पर्सनल टर्म्स पर की बेस पर उनको हायर किया जाता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो केपेबल पर्सन है वो उस मिनिस्ट्री के लिए तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, और जो केपेबल नहीं होता उसको वो मिनिस्ट्री दे दी जाती है, जिसकी वजह से उसको पता तो होता नहीं कि काम क्या करना है, और वो सारा एक हौच पौच हम लोगों को नज़र आता है। और आज पाकिस्तान की अगर कंडीशन हम लोग देखें, ठीक है 23 टाइम्स आप गए हैं, लेकिन आपने सीखा क्या है 23 टाइम्स IMF के पास जाने से? आज आप ये रोना रो देते हैं, IMF के कहने पर ऐसे हेडलाइंस बनाई जाती हैं, और वो मुझे मतलब समझ आती है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं पर बेचारा बना रहे हैं, और IMF को आपने विलन बना दिया। भाई IMF के कहने पर हम लोगों ने बिजली के जो यूनिट्स हैं वो भी हम लोगों ने ज़्यादा कर दिए। इमेजिन कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपको पर यूनिट 50 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है। तो यूजली क्या करता है, अभी ऑब्वियसली जब से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो हम लोगों ने भी उस टाइम में ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ हम अपनी बात ही करेंगे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि AC वगैरह चलाने बंद कर दिए हैं, या और कोई ऐसी लाइट्स जो हैं। और अब मैंने ये भी सुना कि IMF के कहने पर, ये भी मैं पढ़ी थी कि जो गैस है उसमें भी 40% जो है उसकी इजाफा किया जा रहा है। भाई IMF विलेन, और गैस आती कहाँ? ये पहली मरतबा समर्स में ऐसा हो रहा है कि इतनी कम हम लोग को गैस देखने को मिल रही है। और मैं ये बात सोचती हूँ कि आप हर बार में IMF को एक विलन बनाते हैं और खुद विक्टिम कार्ड बनकर और उसके पीछे छुप जाते हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं, ये सरासर आपकी गलती है, क्योंकि जितने साल से जितने भी लीडर्स आए उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं किया, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। अगर की होती तो शायद आज हम लोगों
लोगों को IMF की डिमांड जो है वो ना माननी पड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें इस वक्त गर्मियों में देखने को मिल रही है कि भाई जैसे ही मौसम बाहर थोड़ा चेंज होता है, गैस जो है वो साथ इसका प्रेशर जो है वो कट ऑफ जो है वो कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर चले ठीक है आप IMF के पास गए भी हैं, ठीक है ना, आपको चाहिए था कि भाई आप जो है ना, उन्होंने आपको बेल आउट पैकेज दिया तो आप कुछ ऐसे जो है इक़दामात करें, ऐसे यानी कि प्लानिंग करें, स्टेप्स लें कि भाई आपका मुल्क जो है ना फ्लरिश करे, बजाय इसके कि आप उसे मज़ीद जो है वो गड़े की तरफ लेकर जाएं। मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाया जाए, ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती, इवन कि ना कभी कोई सोचता है। इवन के बहुत सारे यूट्यूब्स पर जो है ना जब कंपैरिजन किया जाता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो आपको जो है ना एक नुमाया फ़र्क जो है वो नज़र आता है दोनों मुल्क की जो लीडरशिप्स हैं उनमें। के एक मुल्क का जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने ट्विटर हैंडलर पर या अपने सोशल मीडिया हैंडलर जितने भी हैं वहाँ पर क्या शेयर कर रहा है। ऑन द अदर साइड हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है वो क्या चीज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर भाई जब बात आती है स्पेस टेक्नोलॉजी में, हम देखते हैं इंडिया बहुत आगे चला गया है, तो इंडिया जो है भाई उनका बयानिया कुछ और होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम यहाँ पर अगर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनका अगर देखेंगे भाई जब ज़मीन से नज़र आता है तो जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अगर आप लेवल देखें ना वो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र बिल्कुल आपको आता है। उसके साथ साथ जो है ना एक और चीज़ जो है, अगर हम देखें ना, एक तरह का आप समंदर आपके पास है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद आप आइसोलेट हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, आपको ईरान बाई रोड जाते हुए डर लगता है, आपको अफगानिस्तान बाई रोड जाते हुए डर लगता है, इंडिया वाली साइड पे आपको एंट्री नहीं मिलती, चाइना वाली साइड पर आप जा नहीं सकते। तो अगर देखा जाए तो आप कंप्लीटली आपने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया हुआ। अगर चाहें ठीक है भाई गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, आप जो है उन पे अगर बात करके आगे मज़ीद जाना चाहें तो भाई अगर देखा जाए तो आप पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को सेंट्रल एशिया तक और ख़ुद जो है साउथ ईस्ट एशिया तक जो है असेस देकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हल कर सकता है। लेकिन फिर मसला ये आ जाता है कि भाई सिर्फ यहाँ पर जो है ना दिन ब दिन मसले बढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि उससे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि कारपेट के नीचे जब तक डालते रहेंगे ना मसले कभी हल नहीं होंगे। और उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि ये जो एक बहाना बना दिया जाता ना कि कभी कोविड का और कभी उसके बाद आप देख लो कि जो रशिया यूक्रेन वॉर का, कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इसीलिए हिट भी किया, लेकिन पूरी दुनिया में ठीक है उसका एक आपको नज़र आता है डिफरेंस। बट मुझे ये टोटली लीडरशिप की एक इनकॉम्पिटेंसी नज़र आती है, और उसकी रीज़न ये है कि अगर देखा जाए श्रीलंका को, तो श्रीलंका जो है वो टोटली टूरिज्म पर डिपेंड कर रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं पर आप देखो कि वो कोलैप्स कर गया, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, क्योंकि एक बिल्कुल ही इस तरह का टाइम आ गया जब कोई भी कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखो तो पाकिस्तान में टूरिज्म पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। पाकिस्तान के पास और अगर मतलब हम लोग पहले के टाइम की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर उसके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी, वो उसमें फ्लरिश भी करता था, लेकिन धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज खत्म हुई। हम बांग्लादेश की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बांग्लादेश देश को भी इम्पैक्ट किया है कोविड ने, रशिया यूक्रेन वॉर ने भी किया। वहाँ पर भी जब आपको पेट्रोल की प्राइसेस में हाइक नजर आई, लोग बाहर सड़कों पर निकले हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर आपको कौन दिखता है? तो यहाँ पर हम लोग एज ए नेशन जो है ना एक मरी हुई कौम है, तो मुझे लगता है उनको जगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री में भी अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा आपको उनको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी, अगर मेजॉरिटी में देखें तो मेनली पार्ट वही है कि जिस पर वो डिपेंड कर रहे हैं। बट उसके बावजूद उन पर असर हुआ, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह से वो इस तरह से बिल्कुल कोलैप्स करने के धाने पे ही पहुंच गई हो। यार पाकिस्तान में अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर पता चलता है ना, जिस चीज़ की प्राइस बढ़ने लगी है लोग उसकी लाइनों में जाकर लग जाते हैं। जैसे कि पता चलता है भाई रात 12 बजे पेट्रोल की प्राइस जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, तो भाई आपको जो है ना नजर आएगा कि मोटरसाइकिलों वाले क्या, गाड़ियों वाले क्या, सारे पेट्रोल पंप की तरफ जो है भागना शुरू हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आटे की लाइनें, चीनी की लाइनें, इवन के आप जो है ना डिफरेंट ब्रांड्स पर सेल भी लगी होती है ना, तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ भी लाइनों में लगे होते हैं, ये हकीकत है। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप जब ऐसे जगह हैं जो गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं कि भाई जहाँ पे थोड़े से आपको कम दाम में, आप कह लें कि बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाले दाम में जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पर भाई चीज़ें ही अवेलेबल नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो भाई इकोनॉमिक जो क्राइसिस है ना वो
वो एक वजूहात की वजह से नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ लेकर जा रहे भाई हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी करप्शन, बैड पॉलिसीज, कोई होमवर्क नहीं है, मिनिस्टर जो हैं वो इतने केपेबल नहीं है कि वो प्रॉपर काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आप कभी ना आपने की हैं और ना ही आप आने वाले टाइम में शायद सोचते हैं कि आपको नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो कि मतलब थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो इस मुल्क से निकलना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोगों में सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। और हालात इस तरह के हैं ना कि मुझे सीरियसली जो यूथ है उसको देखकर भी दुख होता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि भाई पढ़ाई की वैल्यू क्या है, करना क्या वो तो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, अच्छी एजुकेशन लेने के क्या फ़ायदे हैं, वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। वो भी शॉर्टकट मारने के चक्करों में है कि ना हम पढ़ेंगे, बस डायरेक्ट हम कोई काम कर लें और हम लोग भाई वो क्या कहते हैं ना कि रातों रात अमीर हो जाए। तो ऐसा कुछ इस तरह का माइंडसेट मुझे यूथ का नजर आता है। हालांकि मुझे लगता है एक कंट्री को एक मुकाम तक लेकर जाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस उसमें करते हैं। सो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ऑल एंड ऑल जो लीडरशिप है वो भी सही नहीं है और लोग भी जो हैं वो इतने ज़्यादा सही नहीं है, वो भी सिर्फ अपना वक्ती फ़ायदा देखते हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड सबका है। तो मुझे लगता है इस तरह चीज़ें कभी बेहतर नहीं होंगी। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कोर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी लगती हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इतने क्राइसिस में जा चुकी भी है। क्योंकि अगर IMF से 23 टाइम्स इन लोगों ने पैकेज लिया भी है, IMF के पास गए भी हैं, तो अगर ये मुझे लगता है कि उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते तो शायद 1 से 2 मरतबा लेने के बाद इनको ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन 23 मरतबा जाना तो ये अपने आप में समझ आती है कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।